جی سامعین، میں انور ماؤٹا، آپ دیکھ رہے ہیں ویلیج لائف چینل۔ آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں۔ آج کے ٹاپک کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ یونین کونسل عنایت پور ماؤٹا اور یونین کونسل لطف آباد کے درمیان کیا کیا چیزیں ڈیفرنٹ ہیں، کیا کیا چیزیں کمپیریزن ہیں۔ آج اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک روشن ضمیر ماؤٹا صاحب، جو کہ ہمیں تفصیل سے اس بارے میں آگاہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی سامعین، یہ ملک روشن ضمیر ماؤٹا صاحب ہیں، جو کہ عنایت پور ماؤٹا میں سوشل ورک کے طور پہ کام بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سیاست بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے کافی کام کر چکے ہیں اور مزید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو ایسے سمجھیں کہ یہ عنایت پور ماؤٹا کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ایک سوشل تنظیم بھی چلا رہے ہیں جس کا نام عوامی مسلم آرگنائزیشن ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ رہیے گا، یہ ہمیں بتائیں گے کہ ان کی جو یونین کونسل ہے اور ان کی جو ہمسایہ یونین کونسل لطف آباد ہے، ان کے مابین کیا کیا چیزیں مشترک ہیں اور ان کے درمیان کیا چیزیں جو ہیں وہ مشترک نہیں ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ملک صاحب، آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں، مہربانی آپ نے وقت دیا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یونین کونسل عنایت پور ماؤٹا اور یونین کونسل جو لطف آباد ہے، ان کا رقبہ کتنا ہے؟ تقریباً جو یونین کونسل ہے یہ لطف آباد اور عنایت پور ماؤٹا یونین کونسل، یہ پہلے دونوں لطف آباد یونین کونسل بڑی تھی اور اس میں ہی آتا تھا، لیکن یہ بعد میں اب دو یونین کونسل میں تقسیم ہو گئی ہیں، یہ الگ ہو گئی ہے، وہ الگ ہو گئی ہے۔ لطف آباد کا کم رقبہ ہے اور یونین کونسل جو عنایت پور ماؤٹا ہے یہ رقبے کے لحاظ سے بہت بڑی ہے، اور اس کا رنگ پور کے ساتھ اس کا ٹچ ہوتا ہے، اور اس کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ یونین کونسل جو لطف آباد ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ ترقیاتی کام ہو چکے ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سکول بھی ہے، ہائی سکول بھی ہے، وہاں پر ہاسپٹل بھی ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی وہاں پر ہم جو سڑکوں کا جو جال ہے وہ بھی عنایت پور ماؤٹا کی نسبت زیادہ ہے، اور وہاں پر جو ہے شہرہ خواندگی وہ بھی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر جو ہے جابز وغیرہ، گورنمنٹ نوکریوں کی بات کریں وہ بھی وہاں پر زیادہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو عنایت پور ماؤٹا کے لوگ اس چیز میں کیوں پیچھے ہیں؟ جی، عنایت پور ماؤٹا کی بات کریں تو یہاں پر انگوٹھا چھاپ ہے سیاستدان جو کہ نہیں جانتے، اپنے حقوق نہیں لینا جانتے، اور لطف آباد کی بات کریں تو یہاں پر پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں، اپنے رائٹس کے حوالے سے زیادہ جانتے ہیں۔ اب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ لطف آباد میں گرلز ہائی سکول ہے، گرلز ہائی سکول کے علاوہ بوائے ہائی سکول ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر ہسپتال ہے جہاں پر زچہ بچہ کی بھی سہولت ہے اور ڈلیوری بھی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر اب ایک سٹی ہاؤسنگ، جی یہاں پر ہم کھڑے ہیں اس کی پارک میں، یہ آ چکی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے، بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے بتا چکے ہیں کہ جاب ہولڈر لطف آباد میں زیادہ، ہمارے علاقے میں نہیں ہے، ہمارے علاقے میں زیادہ جابز ہیں بھی تو واسا کی ہیں، اور وہ بھی سیور مین کی ہیں۔ جی ملک صاحب، جس طرح آپ نے بات کی کہ بہت زیادہ ڈفرینس ہے یونین کونسل لطف آباد میں اور یونین کونسل عنایت پور ماؤٹا میں، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عنایت پور ماؤٹا میں جو ماؤٹا قوم ہے وہ بڑی اکثریت میں ہے، اس کے علاوہ ذمہ دار بھی ہے۔ جبکہ ہم یونین کونسل لطف آباد کی بات کریں تو وہاں پر بھی جو ہے ذمہ دار تو ہیں، لیکن وہاں پر جو ہے زیادہ جو قومیں ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن عنایت پور ماؤٹا میں میجورٹی میں ہے۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ماؤٹا قوم اتنی پیچھے کیوں رہ گئی ہے؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ماؤٹا قوم نہ تو تعلیم کے میدان میں اس نے کوئی کارنامہ سر انجام دی ہے، نہ تو سیاست میں بھی ہم بات کریں تو کوئی خاص، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پہچان ہونی چاہیے تھی اس طرح نہیں ہے۔ لیکن اس کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا آخر کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے بڑے اس کا ذمہ دار ہیں یا کوئی اور اس کا ذمہ دار ہے؟ میں ملک انور ماؤٹا صاحب آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو لطف آباد یونین کونسل ہے یہ عنایت پور ماؤٹا سے کئی گنا کم، اور یہاں پر جو زمیندار ہیں وہ چند ہیں جن کی یعنی کہ
ज़मीन है, क्योंकि उनके बागात मुरब्बों के हिसाब से हैं और ज़्यादा लोगों का इतना यहाँ पर हिसाब नहीं है। लेकिन हमारे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों का रकबा भी है। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ माओटा कौम के साथ हुआ है, यहाँ पर जो भी लोग बसते हैं, वसेब के लोग हैं, हमारे भाई हैं, तो उनके साथ भी एक जैसा सलूक किया जा रहा है और एक जैसा हो रहा है। और उसकी बुनियादी वजह ये, हम किसी सियासतदान को, किसी MNMP को नहीं ठहराएंगे। उसकी क्या वजह वजह कि जो यहाँ के ऊपर जो हमें लीड कर रहे हैं, हमारे यानी मौजे को लीड कर रहे हैं, वो जिम्मेदार हैं। हाँ, वो जिम्मेदार इस तरह है कि वो नाअहल हैं। वो ये उसका अपने एक तो राइट्स नहीं जानते और उनका एक काम है, मैं आपको बताऊं, कि सिर्फ अपने लोगों के बारे में सोचना, अपने लोगों का क्या, अपनी हद तक, यानी कि अपने घर का, अपने बच्चों की नौकरी का सोचना। अब सोलंग आई हैं तो उन्होंने अपने बाग में लगवाई हैं, अब खालों का फंड मिला है तो अपने बाग में उन्होंने लगवाई है। तो उन्होंने मुश्तरका अवामी मफादात का कोई रुझान नहीं। और जो आप कब्रिस्तान की हाल हज़ार देख लें, हम अरसा दराज से कोशिशें भी कर रहे हैं और दरख्वास्तें भी दे रहे हैं। यहाँ पर आया डिप्टी कमिश्नर भी तशरीफ़ ला चुके हैं, तो उनको मिस गाइड करके ये मसला वही तवालत इख्तियार कर चुका है, अभी तक हल नहीं हुआ। और मैं समझता था ये कि शायद कोई और मसला है। जब रिपोर्ट सामने आई है हमारे पास अभी मौजूद, तो ये जो महकमे औकाफ के ज़ेर कंट्रोल भी नहीं है और ना फंक्शनल कराया जा सका, तो ये सब आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ कह सकते हैं आप। अच्छा मलिक साहब, मैं एक टेक्निकल सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आप मुझे ये बताएगा कि अनायतपुर माओटा में काफ़ी दूसरी बरादरियों के ऐसे लोग हैं जो मेरे ख्याल में अहल भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं माओटा बरादरी की निस्बत, तो क्या आप उनको सियासत में आने देने के हक़ में हैं या नहीं हैं? उनको भी सियासत में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? हम देखते हैं कि वो लोग पीछे हैं, उनको सियासत में नहीं आने दिया जा रहा। हमेशा जो है उनको उनकी तदलील की जाती है कि आपकी कास्ट फ़लाँ है तो यहाँ पर जो है माओटा कौम को इजारादारी होनी चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो लोग अहल हैं, चाहे कोई भी है, वसेब से हैं, हमारे वसेब से हैं, तो मैंने हमेशा वसेब की बात की है और जी उनको मौका मिलना चाहिए, मैं इसके हक़ में। और मैंने हमेशा वसेब की बात की है और वसेब में जो भी यहाँ रहता है वो ये हक़ रखता है कि अगर अहल है, वो सोच रखता है आवाम के बुनियादी मफादात के लिए कोशां है, तो उसको ज़रूर मौका दिया जाना चाहिए। और मैं इंशाअल्लाह ऐसे लोगों की हमने हमेशा सपोर्ट किया है। और साथ कहना, बाकी कौमियत की जो बात करते हैं तो मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। कौमियत नहीं होती, वसेब होता है और वसेब के साथ हमने जीना मरना है और वसेब के लोग हमारा असासा हैं। तो आप ये नारा गलत लगाते हैं कि ये कौमियत के नारे के हम हक़ में नहीं हैं। बाकी ये बताइएगा कि मुस्तक़बिल में आपको कोई बेहतरी नज़र आ रही है, यहाँ पर कुछ बेहतर होगा या नहीं होगा? वही पुराना कल्चर यहाँ पर? मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊंगा कि अगर हम नौजवानों को मौका एक भी दिया जाए, एक बार मौका दिया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि यह खुदा गवाह है कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट हैं, जो मंसूबे हैं, वो हम यहाँ पर लॉन्च करेंगे। क्योंकि जब इख्तियार होंगे बाइख्तियार, हम इख्तियारात का पता है इस्तेमाल किस तरह करना। हम तो यहाँ NGOs के प्रोजेक्ट की भरमार लगा देंगे, यहाँ पर हुनरमंद स्कूल कैम कर देंगे, यहाँ पर लड़कियों की तालीम का इंतज़ाम होगा, हाई स्कूल बनेंगे, ये किसानों के लिए सहूलियात होंगी, यहाँ मशीनरी होगी, बहुत कुछ चीज़ें आपको देखने को इंशाल्लाह मिलेंगी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आवाम के मफाद का हमेशा हमने तहफ़्फ़ुज़ किया है और मुश्तरका मफाद। कभी हमने ये नहीं कहा कि ये सड़क है तो हमारे घर तक है, नहीं। हमने हमेशा उन चीज़ों को डिस्कस किया है और कहा है जो आवाम को ये नहीं कि फ़ायदा पहुँचे, ये नहीं कि इनफरादी तौर पर किसी को फ़ायदा पहुँचे और हम इसके लिए ये करें। तो आप भी हमारे साथ हैं, मलिक अनवर माओटा साहब, आप भी कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ हैं और आपके ताउन से ही हम एक दूसरे के ताउन से आगे बढ़ रहे हैं और मंजिल की जानिब रवां दवां हैं। तो ये ज़रूर है कि वक्त लगेगा, लेकिन हमने बदलना है। तरजीहात बदलेंगी तो निज़ाम बदलेगा, बिल्कुल, और ये ज़रूरी है। अब ये इलाके को आप दिखा रहे हैं कि ये देख लें कि
कितनी यहाँ पर तरक्की हो रही है और ये सब यार हमारा दिल बड़ा ही खून के आंसू रोता है कि 0.25% भी गर्ल्स को तालीम हाई स्कूल तक वो तालीम हासिल नहीं कर सकती। 100% में से 99.75% यहाँ पर अनपढ़ हैं। 0.25 1% का भी चौथा अच्छा, हिस्सा आप ये यहाँ बताएं पर कि आप हासिल कर सकती हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लड़कियों की तालीम पर भी काफ़ी कतगने लगाई जाती हैं, उनको भी यानी तालीम से महरूम किया जाता है। तो आपको अगर मौका मिलता है तो आप इस बारे में क्या इक़दाम करेंगे? मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया, आप भाइयों का ताउन रहा, तो मेरी जो कोशिश है तो लड़कियों को तालीम के लिए हमेशा मैंने कहा है कि उनको हक है कि यहाँ पर गर्ल्स हाई स्कूल होना ज़रूरी है इस वक्त, लेकिन बाद में सेकेंडरी कॉलेज का भी काम ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी आबादी है। देखिए, हम अपने जब नवाबपुर यूनियन काउंसिल को देखें, वहाँ पर भी जो है ना एक कॉलेज बन चुका लड़कियों का, इधर अड्डा बान बोसन चले जाएं वहाँ पर भी। हाँ, ये आप देख लें कि लेकिन हमारे यूनियन काउंसिल में एक भी लड़कियों का स्कूल नहीं है। मेरे भाई यहाँ पर थाने की सियासत करते हैं, हाँ हमें थाने पर प्रोटोकॉल मिले, एक दूसरे पर ये करवाएं। मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग एक दूसरे के खिलाफ ये झूठी FIR करवाएं, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए ये नीच हरकतें करें। तो हम खुद भी इन चीज़ों का निशाना बन चुके हैं। आप इस चीज़ को जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? मैं इस चीज़ का जिम्मेदार उन लोगों को ठहराता हूँ, अपने लोगों को जो बाशऊर नहीं, कि वो ऐसे लोगों को मौका देते हैं जो इनके धोखा खा जाते हैं ना, ज़बान पर धोखा खा, जो इनके हकूक़ नहीं जानते। अब देखिए, यूनियन काउंसिल की इमारत नहीं और सारा रिकॉर्ड दार बदार है। बिल्कुल, और हमारी जो यूनियन काउंसिल का फंड है वो दूसरी यूनियन काउंसिल वापस हो जाता है, इमारत तक नहीं तमीर करवा सकते। अगर आप में इतना स्टैमिना नहीं है तो आप आवाम के सामने आते क्यों हैं? जब आप बात ही नहीं कर सकते आवाम की, आवाम के जो हकूक़ हैं उनको पता ही नहीं है, समझते नहीं है, अपने इख्तियारात का आपको नहीं पता, तो फिर आवाम को क्यों बेवकूफ़ बनाया जाता है? आवाम के साथ ये मजाक है और ये मजाक सालों से किया जा रहा है। पहले ये लुत्फाबाद में जो था निज़ाम, वो फंड लेकर अपने बागों में लगवाते थे। अब जो निज़ाम बना है, अब कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? कोई तरक्याती काम नहीं हो सका। और अब जो दौर गुजरा है, इसमें भी कोई खातिर खा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, उन लोगों के हुए हैं जो टू टाइम पे ही उनका पहले सोलंग थी वो तुड़वाई, नाई लगवाई, तो ये हैंगी फैंगी चल रही है। मतलब बाकी आवाम को कोई काम नहीं हुआ। जब बारिश होती है, आप इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि पैदल नहीं गुजरा जाता, पैदल नहीं गुजर सकते। और ये कितना बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा होता है हमारी यूनियन काउंसिल का, क्योंकि ज़राई है। बिल्कुल, ज़राअत यहाँ पर होती है, यहाँ पर यानी कि गंदम होती है, मकई होती है, मैंगो जाता है और सब्जियाँ काश्त होती हैं, तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन सहूलियात सिफर हैं, कुछ नहीं मिल रहा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपके चैनल से, तवज्जो से, लिहाजा आप किसी को सिलेक्ट करते हुए देखिए, जो हमारे जो हमसाया यूनियन काउंसिल है, लुत्फाबाद यूनियन काउंसिल, उसका क्रेडिट आप किसको देते हैं? उसकी जो डेवलपमेंट में किसका ज़्यादा किरदार है उसमें? उसके वहाँ के नुमाइंदों का है, वहाँ की आवाम का है। वहाँ के नुमाइंदों की तरजीहात अच्छी हैं, वो अपना फंड जो है अपनी आवाम पर खर्च करते हैं। क्या आप समझते हैं कि हमारी यूनियन काउंसिल के जो आवाम है उनको अपने राइट्स का नहीं पता? नहीं, अगर पता होता तो ऐसे लोगों को वो क्यों सेलेक्ट करते? हाँ, और दूसरी बात है, वो आवाम भी मजबूर है कि वो लोग सामने आते हैं कि जिनका कोई तरजीहात नहीं होती, बस वोट दे दें, हमारी पक गए, हम बड़े हैं, फला। यार क्या है? अब आए तो नौजवानों को पूछना चाहिए, हाँ आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, आप हमें क्या फैसिलिटीज़ देंगे, आपकी क्या तरजीहात हैं, आपका क्या माइंड सेट है। ये बात कोई पूछता नहीं। हाँ, ये फ़लाँ बरादरी का है या फ़लाँ पति का है, फ़लाँ जी इसको वोट दे दें। ये ऐसे यार थोड़ा ये खुद के साथ मजाक कर रहे हैं। ये अपनी नस्लों को जो है आप बर्बाद किया हुआ है, उनका मुस्तकबिल जो है जहालत की तरफ धकेला हुआ है, खुद को तबाह किया हुआ। अब यहाँ से जाते हैं पढ़ने बच्चे किधर? लुत्फाबाद जा रहे। तो हाँ, जिसकी है
गुंजाइश तो वो करता है, नहीं तो गरीब तो सोच भी नहीं सकता वो जाए वहाँ पहुँचाए वापस ले आए, सारा दिन काम करे या ये बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करे। जी सामीन, आज जिस तरह आपने देखा कि मलिक रोशन ज़मीर मोहटा साहब हमें अनायतपुर मोहटा और यूनियन काउंसिल लुत्फ़ाबाद के बारे में आपस में जो कंपैरिजन बता रहे थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो आगे दोस्तों को शेयर करें ताकि हर नई आने वीडियो आप तक पहुँचती रहे। बड़ी मेहरबानी।